25 વર્ષ થયા છે. અશ્વમેધ વખતે જ ડોક્ટર સાહેબ અને જીજીની સ્વહસ્તે સૌથી પહેલી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ હોય તો આપણા ગાયત્રી શક્તિપીઠની થઈ કે બધાને ખ્યાલ છે. અશ્વમેધની તારીખ આપણી એક વખત ડિલે થઈ હતી પ્લેગને કારણે, અને પછી ટૂંક સમયમાં જ માતાજી અહીંયા અમારા માતાજીનું સ્વર્ગલોક સિધાવ્યા હતા. ત્યારથી ડોક્ટર સાહેબ જીજી પહેલી વખત આવ્યા. આજે ગુરુદેવના હનુમાન કહી શકાય અને આપણા બધાના ખૂબ વંદનીય, આપણે બધા જેને હૃદયથી ચાહીએ છીએ એવા વીરેશ્વરજી અહીંયા છે. તો મારે કઈ શબ્દ બોલતા પહેલા આ બધા જ એમની પ્રતિભાથી ખૂબ વાકેફ છો. करे भावपूर्ण स्वागत तुम्हारा, वीर स्वीकार लो धन्य कर दो. करे भावपूर्ण स्वागत तुम्हारा, वीर स्वीकार लो धन्य कर दो. पुष्प बनकर समर्पित रहे हम, तीव्र उल्लास संचार कर दो. भावपूर्ण करे स्वागत तुम्हारा. बड़े भाग्य हमारे जगे हैं, आपके पावन चरण रज पड़े हैं. बड़े भाग्य हमारे जगे हैं, आपके पावन चरण रज पड़े हैं. हम सब हो गए आज धन्य, अनुभव हमें यह हो रहा है. अनुभव हमें ये हो रहा है. अर्घ्य बनकर चरण पर पड़े हम, पुण्य रसधार का ज्वार भर दो. पुण्य बनकर समर्पित रहे हम, तीव्र उल्लास संचार कर दो. करे भावपूर्ण स्वागत तुम्हारा, वीर स्वीकार लो धन्य कर दो. वीर स्वीकार लो धन्य कर दो. वीर स्वीकार लो धन्य कर दो. અહીંયા આવેલા સર્વે ગાયત્રી પરિવારના પરિજનો અને રાજકોટ શહેરના જે ગણમાન્ય લોકો છે, જે ભાવ પૂર્વક પધાર્યા છે, એ બધાનું અહીંયા હાર્દિક સ્વાગત છે. હું એટલા બધા વડીલોને અને હૃદયસ્થ બધા લોકોને જોઉં છું કે હું બધાને એકસાથે નામ નથી લેતો, પણ શાબ્દિક રીતે સૌનું સ્વાગત કરું છું. હું દીનાબેનને વિનંતી કરું કે બે શબ્દો કહીને આ પ્રસંગને, આજના આ કાર્યક્રમને શરૂઆત કરે. બોલે ગાયત્રી માતા की આટલા ધીરા સ્વરમાં રાજકોટ વાસીઓનું તો ચાલે જ નહીં. આપણા સૌરાષ્ટ્રના તો ખાઈ પીને ગળાય હારા થઈ ગયા હોય, શરીરે હારા જ બધાના. જોરથી જયકારો બોલાવો કે બધાને લાગે કે રજત જયંતિની શક્તિપીઠની થઈ રહી છે આપણી. બોલે ગાયત્રી માતા की પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ की પરમ વંદનીય માતાજી की यज्ञ भगवान की वेद भगवान की भारतीय संस्कृति की भारत माता की दरेक भाई बहन कमर सीधी કરીને બેસી જાય. एक बार गायत्री महामंत्र मारी સાથે. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर
પૂજ્ય ગુરુદેવની સૂક્ષ્મ કૃપા, સૂક્ષ્મ ઉપસ્થિતિ, માં શાંતિ કુંજના પરમ વરિષ્ઠ કાર્યકર્તા શ્રદ્ધેય વીરેશ્વર ઉપાધ્યાયજી ભાઈ સાહેબ કે જેઓ પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના સાનિધ્યમાં 58ના યજ્ઞ પહેલાં જ્યારે આ મિશનનો પાયો લખાયો હતો ને એ પહેલાંથી ગુરુજીની સાથે એમની સાથે જોડાયેલા છે. અને એમ કહી શકાય કે આ જન્મ નહીં, અનેકો જન્મથી ગુરુજીની સાથે આપણે બધા જોડાયેલા છે. પણ એમાં એમના જે નિકટસ્થ હોય, જે એમના સહયોગી હોય, સહચર હોય, વિશેષ જેની અંદર શક્તિ સામર્થ્ય છે, એવી ઉર્જાના સ્ત્રોત, બહુમુખી વ્યક્તિત્વ, પ્રતિભાના ધની એવા પરમ શ્રદ્ધેય વીરેશ્વર ઉપાધ્યાયજી ભાઈ સાહેબ, જોનના પરમ આદરણીય રાજુભાઈ, પરમ આદરણીય જાનીભાઈ, પરમ આદરણીય અમારા સરોજબેન, અહીંયા ઉપસ્થિત સમગ્ર રાજકોટ અને સૌરાષ્ટ્રથી આવેલા દરેક દેવતુલ્ય કર્મઠ કાર્યકર્તા ભાઈઓ, શક્તિ સ્વરૂપ માતાઓ બહેનો, આજનો આ અવસર આપણા દરેક માટે એક સ્વર્ણિમ અવસર છે. કારણ કે આ સ્વર્ણ જયંતિ છે. કોની છે? શક્તિપીઠની છે. અને શક્તિપીઠની રજત જયંતિ હોય તો કહે છે કે 25 વર્ષે છોકરો છે ને એકદમ નવયુવક બની જાય, જુવાન બની જાય. તો જુવાન બને ત્યારે એના કાર્યક્રમો પણ જુવાનીના જોશમાં આગળ વધવા જોઈએ. ગડપણ હોય ને તો ગુરુજી કહેતા હતા 80 વર્ષની ઉંમરે કે બેટા મેં જુવાન હું, ગड्ढो હશે તું, ગड्ढो હશે તારો બાપ. હું કેમ ગड्ढो થાવ? માણસ મનથી ગड्ढो થઈ જાય છે, શરીરથી કોઈ ગड्ढो નથી થતું. એની અંદરનો જોશ, એનો ઉત્સાહ, એની સક્રિયતા, એનો વિચાર, એની ગતિશીલતા નિરંતર જે વહેતું રહે છે એને યુવક કહેવાય છે. તો તમારું શક્તિપીઠ, આપણું અહીંનું શક્તિપીઠ કાર્યક્રમ જે અશ્વમેધની રજત જયંતિ, અશ્વમેધમાં 25 વર્ષ થઈ ગયા છે. તો આ કાર્યક્રમમાં આપણા બધાની જવાબદારી શું છે, ભાવિ કાર્યક્રમો શું છે, આપણે હજી શું કરવાનું છે, એની દરેક વિશેષ માર્ગદર્શન આપવા માટે આપણી વચ્ચે પરમ શ્રદ્ધેય વીરેશ્વર ઉપાધ્યાયજી ભાઈ સાહેબ છે. એમનો તમને ટૂંકો પરિચય આપી દઉં કે પોતે નાનપણથી જ એક આધ્યાત્મિક વાતાવરણમાં, એક પરિવારમાં, માતાજીની છાવમાં ઉછરેલા. એટલે ઘર પરિવારના સંસ્કાર હોય ને એ આગળ પેઢી દર પેઢી લઈ જાય છે. અને પોતે મધ્યપ્રદેશમાં એન્જિનિયર રહી ચૂક્યા છે, એન્જિનિયર છે પોતે. અને પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના એક જ આહવાન ઉપર નોકરીને બધું છોડી પરિવાર સાથે શાંતિ કુંજમાં, એની પહેલા મથુરામાં સમર્પિત થઈ ગયા હતા. અને મથુરામાં નાના જે સત્રો ચલાવવાના, વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપવાનું કામ, અને ત્યાંની બધી ગતિવિધિઓ, એટલે મિશનનો જે પાયો નખાણો છે એના દરેક વસ્તુના એ પોતે સાક્ષી છે. અને એક સૌથી મોટું પરમ સૌભાગ્ય કેટલું મોટું છે કે જે સાક્ષાત મહાકાળ છે, યુગ દ્રષ્ટા છે, યુગ પુરુષ છે, અવતારી પુરુષ છે, એના સૌથી નિકટમાં નિકટ જો આજના સમયમાં કોઈ હોય તો પરમ શ્રદ્ધેય આવી જ્યારે વિભૂતિ આપણી વચ્ચે આવી હોય, અને ખાલી એક જ ઘડી નહીં, એમને તમે કોઈ પણ કામ કહો, એન્જિનિયરિંગને લગતું કાંઈ પણ વસ્તુ કાંઈ ખરાબ થઈ ગઈ હોય, કે રસોડાની બહેનોની કઈ સમસ્યા છે, ખાવાનું કેવી રીતે બનાવવું હોય, કે વેદોના વાક્યો હોય, કે પછી સંસ્કૃતનું જ્ઞાન હોય, કે ટેકનિકલ જ્ઞાન હોય, કે આધ્યાત્મિકતાની સાધનાની પરાકાષ્ઠા હોય, કંઈ પણ હોય, કોઈ પણ એટલે એક ચાલતા ફરતા એક એન્સાઇક્લોપીડિયા જેવા છે. તો એવા વ્યક્તિત્વના ધની આપણી વચ્ચે છે. તો હું વધારે સમય લઉં ને મારી માટે જોવા ના આવે, એટલે હું હવે બહુ શ્રદ્ધા ભાવનાથી परम श्रद्धेय उपाध्याय भाई साहब ने आमंत्रण करीश. आप भाई साहब को आमंत्रित करूंगी कि आप आकर के ये जो हमारे कार्यकर्ता पूरे सौराष्ट्र से आए हैं, आप लोग इस शक्तिपीठ की रजत जयंती के लिए एवं जो भावी जो कार्यक्रम होने वाला है वो क्या होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, हमारी जिम्मेदारी क्या होगी, 25 साल के हम हो गए हैं तो 25 साल का एक नवयुवक क्या कर सकता है, गुरुदेव के सपना क्या थे, उसके बारे में पिनाकिन भाई ने कहा एक दफ़ा आप आ जाओ. तो अभी जो बना था उसमें थोड़ा सा जैसा प्रयास होना चाहिए वैसा प्रयास नहीं हुआ था, जितनी तैयारी होना चाहिए थी. व्यवस्था भी थी, उसकी बात को अभी भी शुरू करेंगे. लेकिन यहाँ आए, इस शक्ति को देखा
और बताया कि यहाँ की भी रज जयंती पूरी हो गई है। तो जैसा भी दीना बहन कह रही थी कि 25 साल का तो जवान हो जाता, उससे तो कुछ ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं ना भाई। छोटा बच्चा होता है तो ये कर दो 25 का हो गया तो अब तू जिम्मेदारी संभाल, है ना, तो ये कहा जा सकता है। लेकिन अच्छा लगा कि उस दिशा में शुरुआत हो गई। यहाँ आते ही बताया कि यज्ञोपचार का केंद्र यहाँ शुरू करने वाले हैं, मौन साधना सत्र यहाँ शुरू करने वाले हैं। और उसके साथ मैंने कहा कि और कार्यकर्ताओं के और सत्र भी चालू रखना। तो ये एक मतलब ये एक जवानी की शुरुआत हो गई। जवानी में प्रोडक्टिव हो जाता है बच्चा, तो ये शक्ति प्रोडक्टिव हो रहा है, ये जान के अच्छा लगा। अभी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे इसकी, ठीक है। तो ये जो क्रम है, अब इसमें कुछ बातें हैं। देखिए कि जो हमारा अभियान है हम भूल जाते हैं बात। हमारा शक्ति ठीक चल रहा है, हमारा यज्ञ ठीक चल रहा है, हमारी उपासना ठीक चल रही है, ये तो सब ठीक है। लेकिन ये क्यों भूल रहे हैं कि गुरुदेव ने खड़ा किया था युग निर्माण के लिए। युग निर्माण माने दुनिया का कोई भी वर्ग, दुनिया का कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए जो सृजन की धारा में आ ना जाए। निर्माण, क्या निर्माण होना है? बस एक ही निर्माण होना है कि भगवान ने जो हमें विशेष बनाया है, हम अपनी विशेषताओं को भूल गए और अंट बंट में अपनी शक्ति लगा रहे हैं। तो भगवान ने जो हमें विशेषता दी है उसको भगवान के ही रास्ते में लगा दें, भगवान के अनुशासन में। इतना ही निर्माण होना है, बाकी तो सब बना हुआ है, भगवान ने बना के भेजा है ना। हम कहते हैं पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण का उदय हुआ है, और ये ऐसा पूर्ण है कि पूर्ण में से पूर्ण निकलने के बाद भी पूर्ण ही रहता है। तो भगवान ने धरती को बना दिया, वो भी ब्रह्मांड भी पूर्ण है और धरती भी अपने आप में पूर्ण है। और मनुष्य को बना दिया तो भगवान भी पूर्ण है, मनुष्य भी पूर्ण है। और भगवान की पूर्णता में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मनुष्य अपनी पूर्णता की तरफ नहीं बढ़ रहा है। दिक्कत यहाँ आ गई। पूर्णता के सारे बीज है मनुष्य के अंदर, लेकिन वो पूर्णता की तरफ नहीं बढ़ रहा है और उल्टा और चल रहा है। क्यों साहब? अगर मैं पूर्ण हूँ, अगर मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, तो हमें अपनी मूल आवश्यकता, बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए ना। क्यों सर? आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ, तो हमारा अपना कम से कम सुख शांति, अपना स्वास्थ्य, अपनी मस्ती, इसके लिए किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा अलग हो गया। क्या हो गया? जो जितना डिपेंडेंट है उतना ही बड़ा आदमी है। मेरा तो इसके बगैर चलता नहीं, मुझे तो ये चाहिए ही, ये नहीं होगा तो मैं कैसे चलूँगा, कार नहीं है तो मैं बेकार हूँ। क्यों साहब? ये मेरी तारीफ नहीं कर रहे तो मेरा मुंह लटक गया। अरे तू अपना गुण खुद नहीं समझता रे, है ना? अरे क्या करूं साहब, वातावरण तो बड़ा खराब है। अरे तो वातावरण खराब है, तू तो ठीक है यार। तो तू ठीक है, तू वातावरण को ठीक कर। नहीं, जैसा वातावरण है वैसे ही मैं बन जाऊंगा। है ससुरे तुम्हें काय का इंडिपेंडेंट है, उल्टा जा रहा है ना। गीता में कहा आत्मन्येव आत्मना तुष्ट है, स्थित प्रज्ञता होती है भीतर से ही अपने आप। तो मनुष्य पूर्णता की तरफ नहीं बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और भगवान को भी इसका कष्ट है। पिता देख रहा है कि मेरे बेटे में बड़ी पोटेंशियल्स हैं और बेटा कुछ कर नहीं रहा है, तो पिता को भी तो बुरा लगेगा भाई। तो भगवान देख रहा है कि मैंने सब कुछ दे के भेजा है, ये धरती पर स्वर्ग रच सकते हैं ये नर नारी मिलकर प्रश्न, लेकिन स्वर्ग रखने की जगह ये तो कलह रचते हैं। मैं तुमसे बड़ा, मैं तुमसे बड़ा, किस बात के बड़े? पता नहीं, मैं सबसे बड़ा।
चाहे धर्म की बात ले लो, चाहे संप्रदाय की बात ले लो, चाहे जात की, और चाहे जाति में जाति की बात ले लो। हूं तो पटेल छू, मेरी तो कोई बराबरी नहीं। अब फिर पटेल में भी कौन सा पटेल है, उसमें भी झगड़ा है। तो तुमको कंप्लीट करने का कहा था कि तुमको और वर्ग में बंटने के लिए कहा था भाई? ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? अरे हम उसके बेटे हैं, हम उसके बेटियां हैं, तो ये बेटे बेटियां एक दूसरे को भाई बहन की तरह क्यों नहीं देख रहे हैं? एक में पूरक क्यों नहीं देख रहे, प्रतिद्वंदी क्यों देखते हैं? ये आगे बढ़ गई, अच्छा अभी बताता हूं। अरे बढ़ गई तो अच्छी बात, उसका लाभ उठाओ। ये आ गई नहीं, अभी हमारा बटाएगी। अरे आ रही है तो मैं सपोर्ट देगी, तो खाली हो गए, बढ़ाओ इसे आगे। क्या हो रहा है? अपने ही विकास के लिए हम ही बाधक बन जाते हैं। ये कौन सी बात है? दिक्कत यह है कि मनुष्य पूर्णता की ओर नहीं बढ़ रहा है। और गुरुदेव ने पूर्णता की साधना की तरफ बढ़ने के लिए सूत्र दिए हैं आपको, गायत्री और यज्ञ। मनुष्य जो है, जो करता है, उसी से उसका स्वभाव बनता है, उसी से उसका संस्कार बनते हैं, उसी से उसकी प्रतिष्ठा बनती है। क्यों सर? मनुष्य जो करता है, बोलता है, उसी से उसकी आदत बनती है, उसी से उसका संस्कार बन जाता है। ज़्यादा किया तो वो संस्कार बन जाता है, उसी से उसकी प्रतिष्ठा बनती है, और प्रतिष्ठा के नाते जन सहयोग आता है। लेकिन जो वो करता है, उसके पीछे उसका सोच होता है, उसका विचार, उसकी भावना होती है। अगर मेरी भावना अच्छी है, अगर हमारी भावना अच्छी है, तो हमारा खराब कर्म भी अच्छा बन जाएगा। खराब कहते हैं, कोई बच्चा रो रहा है और बिलख के रो रहा है, बताओ क्या करना चाहिए? तो उसे पुचकार तो नहीं रहा है, और जिस वजह से वो रो रहा है वही और कर रहा है, और मुस्कुरा के कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? खराब बात कहेंगे ना। बच्चा रो रहा है, और जिस वजह से रो रहा है उसे दूर तो नहीं कर रहा, वही और कर रहे हैं, और वो रो रहा और हम मुस्कुरा रहे हैं, तो हमें कैसा कहेंगे आप? खराब आदमी कहेंगे ना। लेकिन इसमें भी शक है कि भावना तो देखी नहीं। और हमने देखा है, माता जी लोगों की तरफ ध्यान करके कहता हूँ, बच्चा सवेरे उठा और गंदे में पड़ा है, और माता जी ने उठा के साफ करना शुरू किया, उसने रोना शुरू किया। माता जी उसे साफ कर रही है, वो रो रहा है, और ठंडा पानी लगता तो फिर गुनगुन लगती, वो और जोर से रोता है, और यार लल्लू हो गया, हो गया, और रुकती नहीं है, और वही किए जा रही जिससे बच्चा रो रहा है। अब इस माँ को क्या कहें? खराब कहेंगे? बात बदल गई ना। देखने में क्रिया खराब लग रही है, लेकिन भावना है कि बच्चे को शुद्ध बनाना है, बच्चे को स्वस्थ बनाना है। अभी थोड़ी रो रहा है तो रो ले, लेकिन स्वच्छ हो जाएगा तो स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ होगा तो विकसित हो जाएगा। अभी ये भावना पीछे काम कर रही है, तो वो माँ धन्य है, वो व्यक्ति धन्य है। तो उसके पीछे विचार और भावना देखो तो कर्म का हो जाता है। क्या कर सकते हैं? समझ में नहीं आती आदमी को बात। हम अपने एक मित्र के पास साथ गए, किसी दुकानदार ने उनसे वादा किया था, हो गया भैया आपने कहा था, तो बोला हाँ भाई साहब हो नहीं पाया, क्षमा। अरे यार तुमने दूसरे दफा वादा किया था, और मुस्कुरा नहीं, हो नहीं पाया भाई साहब, अब जल्दी कर दूंगा। मैं भी कहना, अरे भाई जब वादा किया तो करना चाहिए। तो फिर वो खुला, बोले भाई साहब मेरे पड़ोस में मेरे पड़ोसी का बच्चा गायब हो गया था, और 2 दिन तक मैं उसको ढूंढने में लगा रहा। अब वो तो इमरजेंसी थी भाई, क्षमा, बात ही बदल गई। वादा खिलाफी की, हम भी उसको कह रहे थे यार तुमने वादा किया तो करना चाहिए पूरा, लेकिन मैंने वादा किया है और एक की जान की पड़ी है, उसकी जान बचाएगा तुम्हारा वादा पूरा है। बात बदल गई ना, भावना आती।
तो श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ विचार से प्रेरित जो काम है वो देखने में गलत भी लगता है तो अच्छा होता है। और ठग बड़े प्यार से बोलता है, बड़ा मीठा बोलता है, आहा हा कैसा बढ़िया बोल रहा है ना। वो हमारे गौड़ जी सुनाते हैं, वह ब्रिज के थे कोई गांव के बेचारे, तो लेते लोटा लेके निकलते, पीतल का भारी लोटा, जानते थे नहीं। अब वो आए तो खाना खा रहे, वो खा रहे थे तब तक एक आया, आधा पाव जलेबी है। अरे कक्का जी प्रणाम। काका प्रणाम भैया। अरे आप ना जानत मोए हैं, मैं तो आपको पहचान गया देखते ही। वो ले महाराज, अरे आप रोटी खा रहे, देखो मैं ले आओ जलेबी से, जलेबी और खाना। बोले अच्छा, अब बैठा। उन्होंने कहा और भाई पानी? बोले अल्लाह पानी मुझे, अरे मैं ले आऊँ तो दो मुझे लोटा। और वो 1.5 किलो का पीतल का लोटा लेके, समझे साहब, 8 आने की जलेबियां दी और 10 रुपए का लोटा लेके गायब हो गया। अब वो ऐसे मीठे बोलने वाली बहुत है, लेकिन वो ठग रहा है। मीठे बोलने का क्या करें, क्यों? वो तो कालनी भी बड़ा मीठा बोल रहा था हनुमान जी से, हा राम रावण युद्ध चल रहा है, राम की तो विजय होना ही है और हनुमान तो बहुत अच्छे आए, और बैठो जरा प्रेम से, ऐसा क्या इसे देर हो जाए किसी तरह से, मीठे ही बोल रहा था ना। तो मेरा कहना है कि जो हमारा विचार और भाव है वही क्रिया को सार्थक करता है, अच्छा बुरा बनाता है। तो ये दोनों ठीक हो जाएं तो बस फिर ठीक है। गुरुदेव ने भावना और विचार को ठीक करने का सूत्र दिया गायत्री, और पुरुषार्थ और कर्म को सूत्र ठीक करने का सूत्र दिया यज्ञ। विचार भावना कैसे हो? अरे हमसे क्या होगा? अरे तुम उसके बेटे हो, किसके? जो ऑलमाइटी है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्, उसके बेटे हो। उसी ने हमें पैदा किया है, तो जिसने पैदा किया उसके गुण तो मुझ में होना चाहिए ना। कहाँ भूल रहे हो अपने आप को? ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यम्, उसका वर्ण करें, उसको उदाहरण करें और वो हमें चलाए। बहुत शानदार। ये भाव हो गया तो जीवन मुड़ गया स्वर्ग की तरफ, जीवन मुड़ गया सामर्थ्य की तरफ। हम कमजोर कैसे हो सकते हैं? हमारा पिता तो ऑलमाइटी है, वो तो सब समर्थ है। हम किसी से नफरत कैसे कर लेंगे? मेरा मालिक तो सब जगह बैठा है। तुलसीदास जी ने लिखा है, उमा जे रघुपति चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखें ही जगत, कहीं सन करें विरोध। अपने प्रभुमय देख रहे हैं, विरोध किसका करें? है? जिसने समझा उसे कहा। उर्दू के शायर ने भी लिख दिया, चेहरे जो देखता हूं तेरी तस्बीह के मन के हैं। तस्बीह कहते सुमरनी को, छोटी माला होती है उस तस्बीह कहते हो। मैं लोगों के चेहरे देखता हूं तो मुझे उसमें आपका रूप दिखाई देता है, तो आपके सुमरन के आधार लगते हैं। चेहरे जो देखता हूं तेरी तस्बीह के मन के हैं, तेरी की सुमरनी है, उसके गुरिये हैं ये। नजरों में फिरते रहते हैं, इबादत आप होती है। हम तो जितने चेहरे देखते हैं उसमें तू ही याद आता है। अरे ये कौन है, कैसे? अरे कैसे नहीं, सब हमारे ही पिता के पैदा हुए, एक से एक विशेषण। अरे साहब इनमें तो सब में भिन्नता है, पर भाव मेरे कारीगर, तूने कितने तरह के गुण पैदा किए, है ना। नाकें सब एक सी हैं, लेकिन सबकी नाकें अलग हैं। आंखें एक सी हैं, सबकी आंखें अलग हैं। मनुष्य का स्वभाव, लेकिन सबके, अरे वाह रे मालिक क्या कमाल है। अब आनंद ले रहे हैं। ये तो ऐसे सोचती है, ये तो ऐसे ही करती है, अब मुंह हटा दो। अरे ये क्या करके धर दिया, तो सोचने का फर्क है ना। तो गुरुदेव ने ये कहा, इस ढंग से देखना शुरू करो। और बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप सब भाई हमारे, कि गायत्री मंत्र और यज्ञ प्रतिबंधित था हजारों साल से। गुरुदेव ने उसे खोल दिया, और हमने पंडितों की नहीं सुनी, शंकराचार्यों की नहीं सुनी, शास्त्र की नहीं सुनी, गुरुदेव की बात सुन करके हमने करना शुरू किया। और
प्रमाण क्या हुआ? हमने जिससे कहा वो भी करना शुरू कर दिया और सारा जगत गायत्रीमय हो गया। मोर्चा लिया है हमने, लिखा जाएगा वो कैसे लोग थे। वो एक ब्राह्मण कैसा था, आंवलखेड़ा में पैदा हुआ, कि उसने हजारों साल की परंपरा बदल दी। और वो कौन थे जो उसके साथ खड़े हो गए? पाप नहीं देखा, पुण्य नहीं देखा करके खड़े हो गए और हवा बदल दी। विवेकानंद 58 के यज्ञ में मैं इंजीनियरिंग का फाइनल था उस साल, 3 ही दिन के लिए गया था। गुरुदेव ने शुरुआत में यही से कही थी, लोग कहते हैं गायत्री सबको क्यों करा रहे हो? लोग कहते हैं गायत्री क्यों करा रहे हो? अरे मैं क्या कर सकता हूँ, एक दिन सारी दुनिया गायत्री करेगी। हमने कहा अजीब आदमी है, खुद ही तो गायत्री का आंदोलन चला रहा है, तो कह रहे मैं क्या कर सकता हूँ। फिर समझ में आया कि ये तो ऊपर का निर्धारण है, ये तो मालिक का निर्धारण है, और उसे निर्धारण को लागू करने के लिए इन पे विश्वास करके भेजा गया है, क्योंकि निर्धारण तो वहां का है, मैं क्या कर सकता हूँ, होना ही है। ये तो सत्य है, वो तो देख रहे हैं कि होना है। एक दिन सारी दुनिया गायत्री करेगी, और आज सारी दुनिया गायत्री कर रही है। पहुंचाया जिनने वो धन्यवाद के पात्र है। लेकिन ये भगवान की माया बड़ी विचित्र है। जब कोई बड़ा आदमी महापुरुष काम करता है और हम प्रभावित होते, हम काम करते तो सफलता निश्चित। क्यों साहब? अगर कृष्ण दिशा दे और अर्जुन चल पड़े तो सफलता निश्चित। अगर रामचंद्र जी कहें कि ले मुद्रिका ले, सीता मिल जाए तो दे देना, मतलब वर्ण हो गया। और हनुमान हिम्मत करके छलांग जाए तो सफलता निश्चित। और सफलता मिले सो इतरा गए, मेरा जैसा कोई नहीं। अब गड़बड़ शुरू होगी, यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। सफलता मिलेगी तो यश मिलेगा, और यश मिलने के बाद अब क्या? यश हजम नहीं होता। अगर हजम हो जाए तो सूखा अनाज भी ताकतवर है, और हजम ना हो तो दूध भी विष है ना। तो फिर यश हजम नहीं होता। जानते नहीं हो मैं गुरुदेव से कितना पुराना जुड़ा हूं। अब तेरे गैस बढ़ रही है, टकार निकल रही, डर डर डर। अब मैं जाता हूं, मैं माता जी के हाथ का भोजन किया है। अरे यही संस्कार दिया था कम वक्त माता जी ने तुझे। अरे माता जी के हाथ का भोजन किया और तेरे मन में प्यार नहीं उमड़ा है ना। काय को बदनाम हो रहा है कि माता जी के हाथ का भोजन करके ससुरा ऐसा ही रहा। लोग ये कहेंगे माता जी को खराब कोई नहीं कहने वाला। गुरुदेव को खून से जुड़ करके भी ससुरा तू संकीर्ण देखता है, युग ऋषि से जुड़ा है, और अभी तो तेरी विचार संकीर्ण है, अभी भी तेरी दृष्टि संकीर्ण है। लोग तो कहेंगे ना भाई। तो क्या हुआ है, गायत्री हमने सब पहुंचा है। लेकिन जो गुरुदेव कहते हैं बेटा गायत्री का वाहन क्या है? हंस। अब तुम गायत्री को लेके चल रहे तो हंस की वृत्ति कितनी आई ये तो विचार ही नहीं कर रहे। गड़बड़ है। क्यों था? अगर तुम्हारे अंदर वृत्ति नहीं आई, अगर गायत्री के संपर्क में आए तो हंस की वृत्ति आनी चाहिए, और हंस की वृत्ति आ गई तो गायत्री तुम्हारे सर पर आ जाएगी। दोनों बातें वाइस वर्सा। अब उधर तो तुम्हारा विचार ही नहीं हो रहा। अरे हम तो बोल रहे गायत्री है, तो अच्छी बात है कि तुमने गायत्री जीव से बोली तो जीव रमा हो गई है ना। पहले लोग गायत्री मंत्र बोल नहीं पाते थे, अब सब बोल लेते, बच्चा भी बोलता सब है, क्योंकि जीव से बोला ना। लेकिन मन तो जीव सध गई क्योंकि जीव ने बोला, लेकिन मन सधा नहीं, क्योंकि शायद मन से नहीं बोला। अभी भी मन भागता है, खराब बातें सोचता है, इधर जाता, जानते हुए भी कि गुरुदेव की निगाह में ये गलत है, फिर भी मन करता है। तो लगता है मन से गायत्री नहीं हुई। अगर मन से होती तो मन तो ठीक होना। जैसे जीव सध गई, मन भी सधता, संभव ही नहीं है। अब देखो अपने आप को। और हंस के गुण क्या हैं? एक शुभ्र, शांत, शांति प्रिय पक्षी है, शुभ्र है, वेदांत, पवित्र जीवन। और क्या है? नीर क्षीर विवेक। अरे साहब बड़ा घपला हो गया है आज दुनिया में,
ये भी हो रहा है, अरे सब कुछ हो रहा है यार, तू तो पहचान ले। क्यों साहब, दूध और पानी मिला हुआ है और चक्कर में पड़े, हंस को तो चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। करतार माने करने वाला, बनाने वाले ने क्या किया है, जड़ और चेतन और गुण और दोष को मिला के दुनिया बनाई है। जहाँ गुण है वहाँ दोष भी है, और जहाँ दोष है वहाँ गुण भी है। अब तुम इनको हंस वंश गुण कहाँ ही पाए, हंस की तरह दोनों को अलग करो और गुण गुण ले लो, दोष दोष छोड़ दो। इसमें क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि हंस वृत्ति नहीं आई। बुरा मत मानो। इनके गुण की बात करते हैं तो हम कहाँ कि लेकिन ये दोष भी तो है, और दोष के नाते इन्हें दूर कर दिया। तो बिना दोष का व्यक्ति तो मिलेगा नहीं, क्योंकि गुण दोष बना के भगवान ने बनाया है। दोनों मिला के बनाया तो दोष रहित व्यक्ति नहीं मिलेगा, लेकिन गुण रहित भी तो नहीं मिलेगा। ये क्यों भूलते हो? ये बहुत खराब है, इनमें भी कोई गुण है, उस गुण को पकड़ लो। और उसमें तो हम विशेषज्ञ रहे हैं, गुणगणना करने का हमारी संस्कृत विशेषज्ञ। एक कोई श्लोक है, आप लोगों ने सुना होगा, विद्यार्थी के लक्षण, बड़ा सुंदर है। क्या कहते हैं? काक चेष्टा बको ध्यानम, कौवे जैसी चेष्टा बगले जैसा ध्यान, है ना। काक चेष्टा बको ध्यान श्वान निद्रा तथैव च, और कुत्ते जैसी नींद, स्वल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये 5 लक्षण है विद्यार्थी। अब वैसे देखो, ये गालियां हैं, कौवे कुत्ते बगला भगत, दोष है ना, तभी तो ये बनाया। लेकिन जिसे हम दोष में गाली में इस्तेमाल करते हैं, कौवे कुत्ते बगला भगत, लेकिन देखने वाले ने उसमें गुण देख लिया। चेष्टा हो तो कौवे जैसी, इतना सचेष्ट रहता है कि आप उसे धोखा नहीं दे सकते। और वो कहते हैं ना कि रामचंद्र जी ने एक आंख फोड़ दी थी, आपने नहीं देखा, हमें संयोग से कौवा पकड़ के देखने का मौका मिला है। उसकी आंखें 2 होती, पुतली एक ही होती है। हमारी 2 पुतलियां हैं 2 आंखों में, तो हम दोनों तरफ देख लेते हैं। उसकी एक ही पुतली दोनों आंखों में चलती है, लेकिन इतना फास्ट मूवमेंट रहता है कि उससे 2 आंख वाले धोखा खा जाए, वो 1 आंख वाला धोखा नहीं खा सकता। और एक विशेषता है उसमें, आप चुग्गा डालोगे और पक्षी आगे चुगना शुरू कर देंगे, लेकिन कौवा पहले कांव कांव करके अपने लोगों को आवाज देगा, तब आकर के चुग्गा मारेगा। अपने लोगों को साथ लेके चलने की वृत्ति उसमें। ऋषि देख लिया, चेष्टा हो तो कौवे जैसी, गुण ले लिया ना भाई। हम तो कौवे से भी सीखते हैं। और बको ध्यानम, अब वो मछली पकड़ने के लिए इतना ध्यानस्थ हो जाता है कि एक टांग से खड़ा है। ध्यान तो बहुत बढ़िया है, लगन तो बहुत अच्छी, लगन सीख लो। वो मछली के लिए खड़ा होता, तुम भगवान के लिए, सिद्धांत के लिए खड़े हो जाओ। खड़ा होना सीख लो ना भाई उससे। काक चेष्टा बको ध्यान, बगले जैसा ध्यान हो। कहाँ आसपास में कुछ नहीं, बिल्कुल चित्र लगा सा ध्यान, वहां से सीख लिया। और श्वान निद्रा, कुत्ते की नींद पता नहीं पड़ता कब सो गया कब जाग गया। जहां मौका मिला यूं सर रखा सो गया, और सोते में जरा आहट हुई, हम अरे भाई कौन है। जागने में समय लगता है, लेकिन वो सीधे भाग। सोते से भी बोलेगा तो एकदम भाग, सचेष्ट है वो। तो वह नींद हो तो ऐसी हो कि ना सोते देर लगे ना जागते देर लगे, ऐसा व्यक्ति प्रगति करेगा। तो सीखने वाला कौवे से सीख रहा है, कुत्ते से सीख रहा है, बगला से सीख रहा है, और हम अपने देवतुल्य भाइयों से नहीं सीखना चाहते। ये कौन सी बात है? हंस वृत्ति तो नहीं आई। अब गायत्री के साथ हंस वृत्ति आना चाहिए। विवेक इतना जागृत हो कि गुण दोष अलग अलग करें। गुरु एक बार कहा करते थे, कई आदमी ऐसे होते हैं कि काम के बड़े मुस्तैद, लेकिन जवान के बड़े कड़वे। तो गुरुदेव कहते थे, देखो ऐसा आदमी अगर सही बात कह रहा है तो अपनी मूंछ नीची करके उसकी बात सुन लेना, क्योंकि अच्छी बात कह रहा है। कड़वे बोल रहा है लेकिन अच्छी बात तो कह रहा है, हिम्मत तो कर रहा है घर पे बात कहने की। ये उसका एक ढंग।
तो मैंने कहा बोले मूछ नीची करना मतलब अहंकार को आड़े मत आने देना, ये तो छोटा है, ये तो पराया है, ये मत कहना। अगर अच्छी बात है तो अब ये विवेक बुद्धि जाग जाएगी तो ही होगा। यार बात तो कांटे की है ना। और हम यही विशेषता है। सबसे पूछते हैं भाई क्या करें, वही समुद्र नहीं मान रहा, क्या करें। विभीषण ने कहा कि आपका तो सगरवंशी हैं, आप पूर्ववंशी हैं, आप इसे प्रार्थना करो। कि लक्ष्मण को बुरा लगा, ये क्या तमाशा कर रहे हैं आप। फिर वही करेंगे, लेकिन पहले उनकी ही बात मानी। फिर किया तो फिर सबसे सलाह लेते हैं, गुण कहीं का भी, हाँ इसकी बात अच्छी है, और बड़े काम की बात मिल जाती है। रामचंद्र जी वनवास को चले गए, निषाद राज को उनका विद्या गुरुकुल का मित्र था, वो निषाद राज था, वो भगवान भी मानता था। उसने स्वागत किया, आगे वाला पीछे से लक्ष्मण वो भरत जी आए सेना लिए हुए, सेना सहित। जरूर राम पे पीछा करने आ रहे हों, सेना सहित क्यों आते। उसके मन में आया ठीक है, राम को हमने किया है, अगर भरत उससे आए हैं तो हमारे जीते जी गंगा पार नहीं कर पाएंगे, जियत न सुरसर उतरन देऊं। चलो रोक लो घाट। तैयार हो गया मित्र के लिए, भक्ति। और एक बूढ़ा कहता है सगुन विचार के, मुझे ऐसा लगता है कि राम से इससे भरत से मिल के देख लो, शायद किसी और प्रयोजन से आए हो। तो वो राजा है, कहे निषाद नीक कहे बूढ़ा ठीक कह रहा है, अभी तुम लोग रहो, फैल जाओ, मैं इशारा न करूं तब तक आक्रमण मत करना। और पूरे उससे भेंट लेकर गया और प्रणाम किया। अब भरत का तो भाव ही दूसरा था। लोगों ने कहा, वशिष्ठ ने, कि ये राम का मित्र निषाद, दौड़ के गले लगा लिया। हरि अब निषाद राज कह रहा, मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। ऐसे भावनाशील को जो राम के लिए इतना आतुर है, मैं अगर तीर छोड़ देता तो अनर्थ हो जाता ना। ये कहाँ से आ गई, बूढ़े की बात मान ली है। ये बूढ़ा कौन होता है, मैं राजा हूँ, मैंने कह दिया आप तो यही होगा। गलती कर जाता क्या, सलाह लो, सम्मान दो, कबूर से। ये है हंस वृत्ति। अच्छी चीज कहीं से भी मिले लो, बढ़ाओ। अब हमारे गायत्री के साथ गायत्री की प्राण चेतना उभरनी चाहिए। यहाँ हम अटक गए। गायत्री मंत्र जब तो अच्छा कर रहे हैं, अनुष्ठान भी कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो हंस की वृत्ति क्यों नहीं आ रही। और एक गुण और होता है हंस का, कि हंसा मोती चुगे कि लंघन कर जाना, अभक्ष नहीं खाएगा। क्यों साहब, गलत बात नहीं बोलूंगा मुंह से, अप्रिय बात नहीं बोलना है मुंह से। क्यों साहब, गलत धंधा नहीं करना है। पैसा मिलेगा तो मिलेगा, कम खा लेंगे। क्यों साहब, भूखे रह जाएंगे, लेकिन रिश्ता नहीं खाएगा, गलत चीज नहीं खाएगा। मोती चुए, अच्छी चीज, श्रेष्ठ, मोती माने श्रेष्ठ चीज, श्रेष्ठ ही कर्म करेगा, श्रेष्ठ ही बात बोलेगा। तो ये हंसवृत्ति क्यों नहीं बना पड़ी। ये हो गया तो हो गया उद्धार, गायत्री मंत्र फलित हो गया। तत्सवितुर्वरेण्यम, श्रेष्ठ को चुन लिया, धीमहि प्रचोदयात्, काम हो गया ना भाई। तो हंस बगैर बने, हंस की वृत्ति आए बगैर तो गायत्री फलित नहीं हुई। और वो नहीं हो रही, हम देख ही नहीं रहे, ना अपने को देख रहे हैं, अपने पड़ोसी को देख रहे। मदद करो एक दूसरे की हंस वृत्ति बढ़ाने, अभी फलित हो जाए। और ये यज्ञ क्यों हो रहा है, यज्ञ वही श्रेष्ठतमा कर्म। और स्वाहा स्वाला वाला यज्ञ ही यज्ञ होगा, तो फिर भूदान यज्ञ क्या यज्ञ नहीं कहलाएगा। हम स्वाहा वाले यज्ञ में इतने सम्मोहित हो गए हैं कि इस यज्ञ के अलावा कोई यज्ञ ही नहीं दिखता। अरे बहुत दिनों से कुछ नहीं हुआ है, एक बड़ा यज्ञ करो, बड़ा एक ज़्यादा पैसा खर्च करो, ज़्यादा धूम धड़ाका करो, आहुति डाल चले जाएंगे। अरे यार वो यज्ञ हमने पहले किए थे, गुरुदेव ने कहा, इसलिए करवाए थे ऐसे भीड़ वाले यज्ञ के लोगों ने एक भ्रम फैला दिया था कि हर कोई यज्ञ नहीं कर सकता, और यज्ञ करेगा तो अनिष्ट हो जाएगा। तो हमने कहा चलो आओ, मुफ्त में आओ, हवन करके जाओ, और देखो कोई अनिष्ट नहीं होगा, लाभ होगा, शादी। अब हो गया। अब यज्ञ का स्तर बढ़ना चाहिए। वो तो हो चुके यज्ञ, नहीं साहब वो यज्ञ है तो जीवन में तो यज्ञ है, जीवन में भगवान की साझेदारी तो है। यज्ञ वही श्रेष्ठतमा कर्म, श्रेष्ठ कर्म को यज्ञ कहते हैं।
शेष भावना से किया हुआ यज्ञ। और क्षमा करना हम जिस भाव से कहते हैं यार बहुत दिनों से कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ, थोड़ी वाहवाही नहीं हुई, तो थोड़ी वाहवाही होना चाहिए इसलिए यज्ञ करो। अरे यार क्या बात है, वाहवाही उद्देश्य है। नहीं साहब उससे कल्याण होगा तो आज हमारी हैसियत तो वो हो गई, वो तो था, अब यज्ञ पहुंच कर गया है और हमारी कैपेसिटी कहाँ पहुंच गई है। अभी हमने गुरुदेव के निर्वाण दिवस पर 2 जून को क्या किया था, 2,40,000 घरों में एक साथ यज्ञ किया। इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा? एक साथ एक संकल्प से 2,40,000 घरों में एक एक कुंडी तो हुआ। 2,40,000 कुंडी यज्ञ हम एक दिन में कर सकते हैं, आज हमारी क्षमता वो है। ये तमाशे क्यों करते हो? बिना छदाम खर्च किए क्यों? और घर घर में बैठ बन गई हमारी, जहां हम गए वो हमारे हो।